शिवलिंग अपने आप में एक अद्भुत शक्ति, जिससे सारी सृष्टि का, जिससे सारे ब्रह्मांड का संचार हो रहा है बाय डिफॉल्ट अपने आप। तो ये वो निर्माण होगा, भव्य निर्माण होगा, जिसमें हम सब शिव भक्त जुड़कर एक साथ इस ऊर्जा का आनंद लेंगे। सबसे पहले ये दशम द्वार, जो आपके मन के द्वार खोले, जो आपको आत्मसात करे, जो आपको उस ऊर्जा का एहसास कराए, वो आप उसको मंदिर कहें, आप उसको गुरु का द्वार कहें, आप उसको आश्रम कहें, ये आपकी आस्था और श्रद्धा है। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੌਂਕ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ 24। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਇਹ ਮੋਕਸ਼ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਸ਼ਿਵ ਧਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਾਫੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ये शिवलिंग जो अपनी है ना, तो एक 11.25 फुट इसकी ऊंचाई है, इसकी 11.25 फुट ऊंचाई है। तो ये गंधक और पारे के नाल बनी हुई है, ठीक है जी। और फिर आगे आपको हम नर्मदेश्वर महादेव दिखाएंगे, आएंगे ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? नर्मदेश्वर जी महादेव, ये नर्मदेश्वर महादेव हैं। ये इन पे 1.25 लाख मूर्तियाँ इस मूर्ति पर स्थापित होंगी। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ स्थापित होंगी, हाँ जी। जी, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ये नर्मदा नदी से निकलते हैं। एक कुदरती ऐसे अपने आप ही बनते हैं, कोई बनाई चीज़ नहीं है कि बनाई गई हो, एक कुदरती अपने आप ही नदी से निकलते हैं। हाँ जी, ਠੀਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। हर हर महादेव, जय शंकर जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? देखिए, शिवलिंग ऊर्जा के प्रतीक। शिव लिंग इज काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। शिव ऊर्जा से भरपूर शिवलिंग अपने आप में एक अद्भुत शक्ति, जिससे सारी सृष्टि का, जिससे सारे ब्रह्मांड का संचार हो रहा है बाय डिफॉल्ट अपने आप ही। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, तो ये वो ऊर्जा है। और इसका 11.25 फीट
जो हाइट है ये भी हमारे सनातन से है। एक तो 11 को बहुत शुभ हम शगुन का वो मानते हैं, साथ में जब सवाया लग जाता है तो मीन्स टुवर्ड्स ग्रोथ। तो ये वो है, ये समाज की हित में, ये जन कल्याण के हित में एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण आप सबके सहयोग से, शिव भक्तों के सहयोग से हमने करने की कोशिश की है। और जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप कह रहे हैं ये क्या है, तो ये ऊर्जा से भरपूर एक कॉन्सेप्ट है। मंदिर हो, गुरु का द्वार हो, वो वहां जाकर हमें क्या मिलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास। यही प्रयास हमने यहाँ पर किया है। इसको आप मंदिर कह लें, आप इसको गुरु का द्वार कह लें, इसको आप कॉस्मिक रिफॉर्मेशन सेंटर कह लें, लेकिन जो हमारा मेन इसका प्रिंसिपल या बेस है दैट इज कॉस्मिक एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा का एहसास। 1.25 लाख ये बेस है एक यहाँ पर जो शिवलिंग का है। 1.25 लाख जो हमने नर्मदेश्वर, जिसका हर कंकर स्वे शंकर, नर्मदा नदी से उत्पन्न होते हैं, हम आपको दिखाते हैं जी जरूर। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ये देखिए नर्मदेश्वर, जिसका हर कंकर स्वे शंकर, ये सारे जौन से भी ये शिवलिंग है ये नेचुरल है, ये मैनमेड नहीं है। 1.25 लाख के पीछे कॉन्सेप्ट है कि हमारे साथ शिव भक्त 1.25 लाख जो अपनी दैविक, शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो, वो यहाँ आकर इसका संकल्प करें और इसका यहाँ पर दान करें। शिवलिंग की भेंट शिव लेंगे हर दुख समेट, इस पर्पस के साथ कि आप कनेक्ट हो, कि आपका यहाँ पर खुद अपना एक समर्पण है। उस इंटेंशन, उस भाव के साथ हमने एक ये छोटा सा जिसको आप बोल सकते हैं कि कोशिश यहाँ पर करने की जारी करी है। तो ये वो निर्माण होगा, भव्य निर्माण होगा, जिसमें हम सब शिव भक्त जुड़कर एक साथ इस ऊर्जा का आनंद लेंगे और अपने सभी प्रकार की फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम से निकलेंगे, निजात पाएंगे। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखिए मंदिर तो अपने आप में जो डेफिनेशन है या डिफाइन करता है, मंदिर मन के अंदर। तो इस जगह पे आने का, या इसको आप मंदिर कह ही रहे हैं, तो सबसे पहले ये दशम द्वार जो आपके मन के द्वार खोले, जो आपको आत्मसात करे, जो आपको उस ऊर्जा का एहसास कराए, वो आप उसको मंदिर कहें, आप उसको गुरु का द्वार कहें, आप उसको आश्रम कहें, ये आपकी आस्था और श्रद्धा है। तो हम इसको मंदिर ही कह सकते हैं। आप जो पब्लिकली आप कन्वे कर सकते हैं मैसेज, तो शिव मोक्ष धाम है वैसे तो ये धाम। तो ये ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਮ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਵਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, मतलब इस चीज़ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि इस जगह, इस चीज़ ਨੂੰ इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ, शिवलिंग ਨੂੰ इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? शिवलिंग अपने आप में एक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है। पारा और गंधक, सल्फर एंड मरकरी, शिव एंड शक्ति कॉम्बिनेशन, जिससे हमारी लाइफ ओरिजिनेट होती है। तो सिंबॉलिकली ये शिवलिंग है और ऊर्जा इसमें अपने आप में ही है। हम सब उस ऊर्जा के ही तत्व हैं, हम उस तरंगों के ही तत्व हैं। तो ये ही है एक परमात्मा का साकार, जिसको आप साक्षी जिससे होंगे, तो उस कंपन, गुंजन, उस सकारात्मक ऊर्जा के स्निग्ध में जब आप आएंगे तो आपका छिद्र छिद्र, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए। ये यहाँ पे उस आनंद के भाव और आनंद का माहौल, यहाँ पर उस चीज का एहसास जो भी गण अब तक यहाँ पर आए हैं उन्होंने इस चीज को प्राप्त किया है। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ 24 घंटे ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਕਨਸੈप्ट ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕੀ कॉन्सेप्ट? देखिए प्रचार किसी चीज का नहीं हो रहा है, बानी जिसको आप कहते हैं, हाँ जी, बानी आप जिसको कह रहे हैं या गुरबानी जिसको कह रहे हैं, हमारे हिसाब से वो हमारे गुरुओं की दी हुई प्रैक्टिकल लाइफ की सीख है, जिस पे हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को चलाना चाहिए। हम उन सब चीज़ों से थोड़े अलग हो रहे हैं, तो हम इस चीज़ की प्रैक्टिस को, कि सबके कानों में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ आ रहे हैं वो गुरु के शब्द, जिससे वो अपनी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ को चला पाएं और चलाना चाहिए प्रिंसिपली। तो वो सब एक तन मन स्वस्थ जीने की कला, वो हमें गुरबानी से ही मिलती है। ऊर्जा हमें यहीं से मिलेगी, लेकिन जो डायरेक्शन है
वो हमें किसी मास्टर या किसी गुरु से ही मिलती है। हम्म, तो गुरबानी चलाने से या गुरु द्वारा दिए गए वचनों को या किसी भी शब्दों को हम्म, अगर हमारे पास किसी तरह से टाइम की कमी है या किसी तरह से हम उस चीज को खुद उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उस चीज को हम सुन पाए, उस वाइब्रेशन को हम महसूस कर पाए। हम्म। तो यही एक छोटी सी प्रैक्टिस है। अच्छा, एक मैं कैमरा पर्सन जरूर कहूँगा ये पूरी दृश्य जरूर दिखावे। एक कॉन्सैप्ट ये पूरा मैं देख रहा ਵਾ, इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਸ ਬੈਂਬੂਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ग्रीनरी काफ़ी चीज़ां ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। मैं एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ वैसे महसूस हो रहा है कि क्योंकि शहर तो दूर है, हरेक जगह तो ये चीज़ां दूर ने, जिस करके इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ मैं कहना मैं जे माइक बंद कर दूंगा ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੋਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓਗੇ, ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इसको कहते हैं यूनिवर्सल वॉइस, ब्रह्मांड की आवाज। हमारे पास इतना शोर है, ट्रैफिक का, हमारे खुद के स्ट्रेस का, हमारे अंदर खुद का पोल्यूशन, आसपास का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो ये 5 तत्व क्या थे? भगवान, भूमि, गगन, वायु, आकाश, नीर, अग्नि, यही 5 तत्व हैं एंड वी ऑल आर मेड ऑफ दैट एलिमेंट। हम इन सब में ही अब पोल्यूशन आ गया। कंक्रीट जिसको आप सीमेंट कहते हैं, वो हर जगह है, हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, कंस्ट्रक्शन। तो उसके बीच में ही हम उस तत्व से दूर हो गए। फिर उसके बाद हमारी जो हवा आई, हवा में इतना पोल्यूशन, गाड़ियां इतने, अब फैमिली मेंबर्स नहीं है जितने वाहन हो गए हैं, फ्यूल का सारा। तो जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम नेचर से थोड़ा बैलेंस बना के चलें। इतना कुछ हमने इस कुदरत से लिया है, दिन रात हम कुछ खाते हैं, इस कुदरत से हम ग्रहण करते हैं, इस धरती से हम ग्रहण करते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, पेट्रोल, हर एक चीज हम इससे अनलिमिटेड ले जा रहे हैं। और ये हमारी कुदरत, हमारी माता सेल्फलेस, ये नेचर अपार कृपा से हमें सब कुछ दे रही है। अच्छा, तो यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज वुड, एयर, वाटर, हम उन सब का, जो हमारे 5 वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर आवर लाइफ, हम उस सब की एक इम्पोर्टेंस और उन सब की एक वैल्यू और उससे भरपूर ऊर्जा का एहसास दोबारा यहाँ पे कराना चाहते हैं। अच्छा, इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ। मेडिटेशन तो बड़ी दूर की बात है। सबसे पहले तन मन शांत, तन आते पहले तो यहाँ पर कोई ऐसे का एहसास नहीं है, कोई आवाजावी नहीं है, स्थिरता, तन की स्थिरता, मन की स्थिरता। फिर जो आपके किसी भी तरह की माइंड में कंफ्यूजन्स चल रही हैं, किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरह का मेंटल या इमोशनल इम्बैलेंस है, उसके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, दैट टू साइंटिफिक। फॉर योर फिजिकल हेल्थ वी हैव पंचकर्मा, आयुर्वेदा बेस्ड, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। फॉर योर मेंटल हेल्थ, ध्यान। फॉर योर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इज योग। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जो हमने निजात नहीं किया या हमने उसको वो नहीं करा है, ये तब से है जब से धरती है, ये तब से है जब से सनातन है, ये तब से है जब से सूरज है। तो ये सारी हमारी, जब मेडिकल साइंसेस नहीं थी तो यही वो टेक्निक्स थी, ध्यान, योग, पंचकर्मा, दशकर्मा, जिनसे तब लाइफ भी देखिए आप 200-200 साल, अब लाइफ स्पैन भी कितना कम हो गया जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो ये नेचुरल तत्व है, इसके बीच में वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ मशीन्स। ये हाथों के प्रेशर से ही हम पंचकर्मा, आपके खुद के ही बॉडी प्रेशर से, शिरोधारा से, हर्ब से, जो यहाँ पर हमारी इन हाउस प्लांटेशन है, उनसे ही हम ट्रीटमेंट्स करते हैं। किसी भी तरह के आपकी बॉडी पेन्स है, मेंटली हम आपको थोड़ा सा स्थिर करेंगे, जिसमें हमारे पास ध्यान है, योग है, और वैसे यहाँ की ऊर्जा से बाय डिफॉल्ट जो आएगा इसके स्निग्ध में, अपने तरह के हर रोगों से मुक्ति पाएगा। अच्छा, एक बारी मैं कैमरा पर्सन ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾफ़ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾफ़ੀ ਦੂਰ ਹੋ, ਕਾफ़ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਜ਼ ਅ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ लोगों को वो नहीं है। हाँ हाँ, ब्यूटी। देखिए, ब्यूटी में अपने आप में एक अट्रैक्शन है, और मेरे हिसाब से शिव जी से सुंदर, और या शिव जी अपने आप में ही सिंबल ऑफ ब्यूटी, अट्रैक्शन है ना। अब सारी ये जो हमारी धरती अर्थ भी किसी अट्रैक्शन में ही है, इनका अपना भी कोई बेस नहीं है। तो किसी भी चीज़ की ब्यूटी तब तक मेंटेन्ड है जब तक उसमें किसी तरह की करप्शन, पोल्यूशन, किसी तरह का भी आपका बैड इंटेंशंस या वाइब्रेशंस नहीं है। तो यही हमारा एक मेन मोटो है कि इस जगह पे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कलर, कास्ट, यहाँ पर जो हमारी ब्यूटी है वो यही है, कॉस्मिक एनर्जी, जिसको हम बार बार आप तक कन्वे करना चाहते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा का एहसास, यहाँ पर जितना हमसे हो सके हम उसको बरकरार कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ भी सिंथेटिक, किसी भी तरह का कंक्रीट, किसी भी तरह का सिंथेटिक मटेरियल, प्लास्टिक्स हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करे हैं। तो आप घास देख रहे हैं, आप मिट्टी देख रहे हैं, आप पेड़ देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, यही आज के टाइम पर हमारी जो मेडिकल हेल्थ के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा, मैं एक मंदिर देख रहे हैं सामने, मंदिर, इस चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰदिर ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? आप मंदिर ही कहें, कह सकते नहीं है, मंदिर ही है ये। मैं इस जगह बारे भी ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ? कहानी तो देखिए, बनाने वाले की कहानी, उस कहानियों का तो किस्सा चलता ही रहेगा। यहाँ पर कहानी, यहाँ पे हमारी वही है, शिव प्रेम। तो हर चीज़ की कहानी और हर चीज़ का बेस हमारा वही है। फिर से हम कहेंगे ईश्वरीय शक्ति, शांति, ओम शांति। तो यहाँ पर हम वो ध्यान की अवस्था में सबको लाते हैं। तो हमारे सिखाने की बजाय वो खुद ही सीख जाए, ऐसे का कुछ छोटा सा एहसास, ऐसे की कुछ छोटी सी प्रैक्टिस हमने यहाँ शुरू करी है। ठीक, शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਬੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਬੂਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾफ़ी ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾफ़ी ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾफ़ी ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਨਿਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ 24।